کچھ ہی دیر میں وہ اس پھول کو بھول بھال کر اپنی کزنوں کے ساتھ باتوں میں لگ گئی تھی۔ تقریب کے لیے سب نے سر شام سے تیاری شروع کر دی تھی۔ اس بار بھی مرد اور خواتین کے لیے الگ الگ انتظام رکھا گیا تھا۔ ولیمے کے حساب سے زیادہ تر سب نے ہلکے رنگوں کا ہی انتخاب کر رکھا تھا۔ کانوں میں جھمکا ڈالتی وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آ رہی تھی۔ اسٹیپ پنک فراک میں اس نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ لگ رہا تھا جیسے وہ ڈریس بنایا ہی اس کے لیے گیا ہو۔ ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں اور گجرے پہنے ہوئے تھے۔ ماتھے پر سنہری ٹیکا لگایا ہوا تھا۔ کمر تک بکھرے ہوئے دراز بالوں کو اس نے دوپٹے سے چھپا لیا تھا، جس سے اس نے پیشانی سے تھوڑا پیچھے کر کے رکھا تھا۔ اپنی ہی دھن میں آتے سالار نے جب اسے دیکھا تو وہ اپنی جگہ جم گیا تھا۔ وہ پلکیں تک نہیں جھپکا پایا تھا۔ ہمیشہ شام سے حلیے میں رہنے والی دیر شام کی یہ سج دس اسے گنگ کر گئی تھی، جبکہ اس کے گلابی لگوں پر اس وجہ سے مسکراہٹ تھی کہ نہ جانے یہ ڈریس دلانے والے کی نظر جب اس پر پڑے گی تو تب اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ رائما پھپھو نے اس کا شانہ تھپکتے ہوئے پوچھا۔ اس کی نظر اتار دیں آپ۔ مسکراہٹ چھپا کر وہ خود کو سنجیدہ ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کر چکا تھا۔ میں کئی بار اتار چکی ہوں، بس اللہ پاک اس کے نصیب اچھے کریں، آمین۔ ویسے آپ کو اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے نصیب تو مجھ سے جڑے ہیں۔ کانوں کی رو کو مسلتے ہوئے وہ انجان بن کر بولا، میری تو بس یہی دعا ہے کہ تم دونوں کی خوشی دیکھنا بھی جلد نصیب ہو۔ انہوں نے محبت سے سالار کی پیشانی چومتے ہوئے کہا تھا۔ رسٹ گولڈ میکسی اور ڈنر سوٹ میں ملبوس دلہا دلہن اسٹیج پر بیٹھے بالکل ایک پرفیکٹ کپل لگ رہے تھے۔ ان کی جانب اٹھنے والی ہر نگاہ میں ستائش تھی۔ پستئی رنگ کے خوبصورت سے ڈریس میں وہ سونا کے ساتھ یہاں وہاں گھومتی اپنی ہی باتوں میں مصروف تھی۔ مہمانوں کی خوش قسمتی تھی کہ مہندی کے دن کی طرح وہ الگ تھلگ نہیں بیٹھی تھی۔ آج جب سے خوش اخلاقی سے مل رہی تھی، یوں بے بریز غازی اپنے موڈ کے مطابق چلتی تھی۔ موڈ ہوا تو ہنس کر بات کر لی، اور اگر نہیں ہے تو پھر تو کون اور میں کون؟ وہ تمہیں نہیں جانتی تو بس نہیں جانتی۔ اور ایک طرف ریشام تھی۔ موڈ چاہے کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو، اگر وہ کسی سے ملتی تھی تو اس کی مسکراہٹ اور خوش اخلاقی میں فرق نہیں آتا تھا۔ جن سے بھی وہ مل رہی تھی سب اس کی اور اس کے لباس کی خوب تعریف کر رہے تھے، جن کے جواب میں وہ مسکرا دیتی تھی۔ اسے تو صرف ایک شخص کی تعریف سے مطلب تھا، جس نے ابھی تک اسے دیکھا بھی نہیں تھا، اور دیکھ بھی لیتا تو کیا تھا، اس نے کون سا اس کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا دینے تھے۔ اس کو معلوم تھا یوسف کے منہ سے اپنی تعریف سننا صرف ایک دیوانے کے خواب کی مانند تھا، لیکن اس دل ناداں کی خوش فہمیوں کا آخر کیا جا سکتا تھا؟ زاریہ غازی سے اسے ڈانٹ بھی پڑ چکی تھی کہ کیا ضرورت تھی یوسف سے پیسہ لے کر نیا جوڑا لینے کی، جبکہ اس کے پاس کافی سارے نئے جوڑے پہلے سے موجود تھے۔ وہ ان سے کہہ نہیں پائی تھی کہ اس ایک جوڑے کے مقابلے میں اگر 1000 جوڑے بھی لا کر رکھ دیے جائیں تو بھی اس کی اہمیت پھر بھی کم نہیں ہونی تھی۔ پرفسوں تنہائی اور خوابناک ماحول میں وہ بے سدھ نیند کی آغوش میں تھے، جب بغیر کسی آواز کے کھڑکیوں کے پٹ واہ ہونے لگے تھے۔ تیز ہواؤں نے وہاں ٹھنڈک کا احساس بڑھا دیا تھا۔ ایک دل فریب سی خوشبو وہاں پھیلتی جا رہی تھی۔ بریزے گہری نیند میں ہونے کے باوجود بھی سرگوشی پر اس کی آنکھ جھٹکے سے کھلی تھی۔ روم کی لائٹس آن تھی۔ آج وہ بند کر کے نہیں سوئی تھی، انجانے سے خوف کا شکار ہوتے ہوئے پورے کمرے میں نظریں دوڑا رہی تھی، لیکن وہاں کسی کی موجودگی کا ذرا سا شائبہ بھی نہیں تھا۔ گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کرتی وہ دوبارہ لیٹنے لگی تھی جب تکیے پر رکھے اس گلاب کے پھول کو دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھی۔ وہ جیسے کرنٹ کھا کر بیڈ سے اٹھی۔ ایک ڈر اس کے اندر سرایت کرتا جا رہا تھا۔ ایک بے ضرر سے پھول سے کوئی اتنا خوفزدہ کیسے ہو سکتا ہے آخر؟ وہ آواز اس کے کہیں بہت قریب سے ابھری تھی۔ وہ بے ساختہ پلٹی، لیکن کمرہ خالی تھا۔ کون ہو تم؟ کیوں تنگ کرے ہو مجھے؟ وہ چیخ اٹھی۔ فاس، عاشر، اگر یہ تم دونوں ہو تو میں جان سے مار دوں گی تمہیں۔ اسے یہی لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں اس کے ساتھ کوئی مذاق کر رہے ہوں، لیکن وہ آواز تو ان دونوں میں سے کسی کی نہیں تھی۔ ایسی بھاری آواز اور دلکش لب و لہجہ اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ ایک لمحے میں کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ ساری لائٹس خود بخود بند ہو چکی تھیں، لیکن کھلی کھڑکی سے اندر تک آتی چاند کی روشنی سے کمرہ منور ہونے لگا تھا۔ ہوا سے سرسراتے پردے وہاں کسی کی موجودگی کا پتہ دے رہے تھے۔ جب وہ ہلکا سا سایہ بریزے کو وہاں محسوس ہوا تو وہ خوف سے پیچھے ہٹی۔ اس کا چہرہ سفید پڑنے لگا تھا۔ کون ہو تم؟ اس کا تنفس تیز ہو رہا تھا۔ سرسراتی آواز میں وہ مشکل سے بول پائی تھی، جو بھی تم سمجھنا چاہو، خواب، خیال، حقیقت۔ بھید بھری خاموشی میں اس کی آواز پھر ابھری تھی، یا پھر محبت۔ بریزے کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ صرف پلک جھپکنے کی دیر میں وہ سایہ پردے کی اوٹ سے نکل کر اس کے سامنے آ چکا تھا۔ وہ اس سے صرف کچھ انچ کے فاصلے پر تھا۔ مجھ سے ڈرو مت،
अपनी चमकती काली आंखों से उसकी आंखों में झांकते हुए उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। सांस रोके, तेज तेज पलकें झपकते हुए वो यकीन करने की कोशिश कर रही थी कि आया वो हकीकत में उस शख्स को अपने करीब खड़ा देख रही थी या वो महज एक ख्वाब था। दूसरे ही लम्हे उसका सर घूमा था। वो चकरा कर फर्श पर गिर पड़ी थी। आप मसरूफ तो नहीं? खुले दरवाजे पर दस्तक देते हुए उसने पूछा। नहीं, मैं तुम्हारा ही मुंतजर था। आ जाओ अंदर। किताब बंद करके मेज पर रखते हुए उन्होंने कहा। जब वो उनके सामने रखे सोफे पर बैठ गया तो उन्होंने बात का आगाज किया। रात किस वक्त सोए थे तुम? उनकी जांचती नजरें उसी पर थीं जो उनसे इस सवाल की उम्मीद नहीं कर रहा था। जब ही गड़बड़ा गया। मालूम नहीं, शायद 3 बज रहे थे। नजरें झुकाई कहते हुए उसने झूठ का सहारा नहीं लिया था। नींद की गोलियां लेने के बाद भी? फरमान की अगली बात ने उस पर घड़ों पानी डाल दिया था। उसे कतई खबर नहीं थी कि वो इस बारे में जान जाएंगे। वो शर्मिंदगी की अतः गहराइयों में डूबते उनसे नजरें नहीं मिला सका था। ऐसे कब तक चलेगा दारियान? अभी तो तुम्हारी उम्र भी इतनी नहीं है। उनके अंदाज में तासुफ था। क्यों खुद को अजियत दे रहे हो इस तरह? ये अजियत सारी जिंदगी मेरे साथ रहेगी। उसका धीमा लहजा सपाट था। अच्छे बुरे फेज हर इंसान की जिंदगी में आते हैं। अक्लमंद वो नहीं होते जो माजी को लेकर हाल में परेशान होते हैं और फिर अपना मुस्तकबिल भी खराब करते हैं। भूल जाने में ही भलाई है। दारियान के शाने पर हाथ रखते हुए वो नरमी से बोले। आपके लिए कह देना आसान है फरमान भाई, लेकिन मेरे लिए ये करना नामुमकिन है। मैं उसे भुला नहीं सकता। आंखों में उमड़ आती नमी को छुपाने के लिए वो उठ खड़ा हुआ। आप नहीं चाहेंगे तो मैं कहीं जॉब नहीं करूंगा। जिस काम से आप रोकेंगे दोबारा उसका नाम भी जुबान पर नहीं लाऊंगा। लेकिन इसके लिए मैं मजबूर हूँ। आप मुझे उसे भूल जाने के लिए मजबूर मत करें। ये मेरे लिए जानलेवा अजियत के सिवा और कुछ नहीं होगा। उसके लहजे की नमी और जख्मीपन पर वो गहराई से महसूस कर रहे थे। फरमान का दिल कटता था उसकी अजियत पर, लेकिन वो लाचार थे। इस मौजू पर बात करने के लिए वो कभी राजी ही नहीं होता था। सुबह दुखते सर के साथ जब वो उठी तो उसका जिस्म बुखार में फुनक रहा था। रायमा पुपोस के पास ही बैठी उस पर कुछ पढ़कर दम कर रही थी। उसे आंखें खोलते देखा तो बेसाख्ता शुक्र अदा किया। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं उसका जहन ब्लैंक हो रहा था। उसे अभी भी नहीं समझ आ रहा था कि रात जिस शख्स को उसने अपने रूम में देखा था वो वाकई वहां मौजूद था या फिर उसने कोई डरावना ख्वाब देखा था। मैंने रेशम को तुम्हें जगाने के लिए भेजा तो उसने वापस आकर बताया कि तुम तो बुखार में जल रही हो। खिड़कियां भी बंद करके नहीं सोती तुम? इतनी ठंड में तो फिर बुखार होना ही है। हम ना गाजी ना जाने क्या कह रही थी। वो बस अपना सर पकड़े मुसलसल उसी ख्वाब के बारे में सोचे जा रही थी। ठंडे पानी की पट्टियां रख के तुम पर दम किया है तो अब बुखार कुछ कम हुआ है तुम्हारा। चलो उठकर फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता रखवाती हूँ तुम्हारा। उनके स्टार करने पर नाचार उसे उठना ही पड़ा था। मैं आती हूँ कुछ देर में। उनके जाने के बाद वो उठ खड़ी हुई थी। बड़ी सी हवादार और रोशन खिड़कियां अभी भी खुली हुई थी जहां से सूरज की किरणें छन छन कर अंदर तसल्लु जमा रही थीं। ख्वाब, ख्याल, हकीकत या फिर मोहब्बत? अपनी सोचों को झटकते हुए वो वार्डरोब से हैंग किया हुआ सूट निकालकर वॉशरूम की जाने पड़ रही थी जब उसकी तवज्जो ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी। वहां पर उसके साजो सामान के पास वही फूल पड़ा था, महकता ताज़ा लहू रंग का गुलाब, जो कल रात उसे अपने तकिए पर दिखाई दिया था। उसने बेसाख्ता दीवार का सहारा लिया। तो क्या वो ख्वाब नहीं था? फिर कपड़े नीचे फेंक कर वो भागती हुई अपने कमरे से निकली थी। बराबर में ही रेशम का रूम था। बगैर नॉक के अंदर दाखिल होकर उसने फौरन से दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया था। वो जो यूं ही जाने के लिए तैयार हो रही थी, बरीजे को इस तरह वहां आती देख हैरान हुई। तुम्हें क्या हुआ है? रेशम, रेशम कल रात कोई मेरे रूम में आया था। रोते हुए उसके गले लगी। वो बेहद खौफ का शिकार थी। आंसुओं के दरमियान वो बमुश्किल बोल पा रही थी। क्या मतलब? कौन था तुम्हारे रूम में? तुम रोना तो बंद करो पहले। बरीजे को काउच पर बिठाकर वो उसके लिए पानी का गिलास ले आई थी। बरीजे की हालत ने उसे परेशान कर डाला था। मुझे नहीं मालूम। और वो फूल? वो एक एक करके सारी बातों से बताती गई जो उसे टोके बिना सुन रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है रेशम। हाथों में सर गिराए उसका चेहरा आंसुओं से तर हो रहा था। मेरी बात सुनो बरीजे। रेशम ने उसका हाथ अपने हाथों में थामा। रिलैक्स हो जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारा वहम है। हवेली में इतनी सिक्योरिटी है, कोई अननोन पर्सन कैसे दाखिल हो सकता है और मिनटों में कैसे गायब हो सकता है आखिर? मेरी बात का यकीन करो रेशम, वो कोई ख्वाब नहीं था, न ही मेरा वहम था। मैंने सच में उसे अपने सामने देखा था। वो मेरे पास खड़ा था, मुझसे बात कर रहा था। बरीज़े को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उसे अपनी बात समझाए। और तुम्हें यकीन नहीं तो चलो मेरे साथ, वो फूल देखो वहीं पड़ा है। वो उसका हाथ पकड़कर अपने रूम में ले आई थी। कहाँ है फूल?
रेशम ने सवालिया अंदाज में पूछा, जबकि वो फटी फटी निगाहों से ड्रेसिंग को देख रही थी जहां उस फूल का नामो निशान भी नहीं था। वो अभी यहीं यहीं पर था, मैं झूठ नहीं बोल रही। हाथ की पोछ से गीला गाल रगड़ते हुए वो यहाँ वहां देखती उसे तलाश कर रही थी। बरी से, मैं कह रही हूं ना कि यहाँ कोई फूल नहीं है, सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ भी नहीं। शादी की वजह से तुम बहुत थक गई हो, सिर्फ रेस्ट करो, ठीक हो जाओगी। उसका चेहरा थामे वो नरमी से उसे समझाते हुए कह रही थी, जो भीगती हुई आंखों के साथ लब चबा रही थी। बैग और फाइल्स उठाते हुए वो कलाई पर बंधी रिस्ट वॉच देखती जल्दी जल्दी कदम उठाते हुए पोर्च की तरफ बढ़ रही थी। आराम से चलो, किस बात की जल्दी है तुम्हें? ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल रेडी होकर वो भी निकलने ही वाला था। यूनी के लिए लेट हो रही हूँ सालार भाई, लेक्चर मिस हो जाएगा। वो दोनों चलते हुए साथ ही बाहर आए थे। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? मुझसे समझ लेना टॉपिक। हरगिज नहीं, आप पर तो अब मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं। आपको मालूम था कि मेरी असाइनमेंट बनाने में हेल्प करनी है, आप फिर भी अपने दौरे पर चले गए। आप पर तो मैं अब कभी इतबार ना करूं। उसकी इतनी बेतबारी पर वो बेसाख्ता हंस पड़ा था। आखिरी मौका दे दो, अब किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा तुम्हें। ऐसा तो सोचिएगा भी नहीं। रेशाम जमीर गाजी किसी को दूसरा मौका नहीं देती। गाड़ी का शीशा साफ करते यूसुफ के कानों तक उसकी कदरें ऊंची आवाज बखूबी पहुंच रही थी। ओह, मतलब अब कोई चांस नहीं? उसके लहजे में मसनूई अफसोस था। बिल्कुल भी नहीं। आज से मैंने आपको अपने जाती उस्ताद के ओहदे से बर्खास्त कर दिया है। उसका शान बेनियाज अंदाज देखने से ताल्लुक रखता था। आज से आपके पास नहीं आऊंगी ट्यूशन लेने। साथ ही इतला भी दे दी गई थी, आपकी जॉब चली गई। मेरी तरफ से अफसोस कबूल करें। खामोशी से उनकी सारी बातें सुनने के बाद फाज उसके पास आकर बोला, बहुत शुक्रिया। सालार ने भी गहरे दुख के तासुरात चेहरे पर लाते उससे मुसाहिफा किया था। वैसे तुम कहो तो मैं ट्यूशन दे दिया करूंगा तुम्हें। फीस के तौर पर मुझे अच्छी सी चाय और कुछ स्नैक्स वगैरह बना देना। मौके से फायदा उठाते हुए उससे अपनी किस्मत आजमाने का सोचा। तुम तो रहने ही दो, फ्रिज और इस्त्री ठीक करने का मुझे कोई शौक नहीं। उसने नखुवत से कहा, मैं तो कहता हूँ सीख लो, फ्यूचर में बहुत काम आएगा। क्यों? जब जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगी, तुम आ जाना ठीक करने। अच्छा, तुम्हें लगता है कि मैं इतना फारिग हूं कि तुम्हारे एक फोन पर चलाऊंगा? फाज ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया। इससे मत बुलाना रेशम, इस बेचारे की दुकान पहले ही रश लगा होगा। लोगों के बल्ब, टीवी, वॉशिंग मशीन, न जाने क्या कुछ मरम्मत करने में मसरूफ होगा। सालार ने शरारत छुपाते हुए संजीदगी से कहा, पता नहीं लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को इतना फॉर ग्रांटेड क्यों लेते हैं। तुम ये खड़े सोचते रहो, मैं जा रही हूँ। गाड़ी रेडी थी। यूसुफ ने उसके लिए पिछला डोर खोला तो वो फाज को कहती अंदर बैठ गई। अब इस बात पर आप मुझे ड्रॉप करेंगे? वो सालार से बोला, तुम्हारी यूनिवर्सिटी मेरे रास्ते में नहीं पड़ती यार, फजूल में देर करवा दोगे, मुझे मीटिंग है। एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप कौन सा एम्प्लॉय हैं? ऑफिस तो आपका अपना है, जब दिल करे चले जाए। लापरवाही से कहते हुए वो फ्रंट सीट पर बैठ गया था। बेशक ऑफिस मेरा अपना है, लेकिन हर चीज को चलाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिन पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। अगर मैं ऑफिस वक्त पर नहीं पहुंचूंगा तो मेरी हिदायत के बगैर स्टाफ काम शुरू नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से मुझे लाखों करोड़ों का नुकसान भी हो सकता है, जिसका असर सिर्फ मुझ पर ही नहीं मेरे स्टाफ पर भी पड़ेगा। लेकिन ये मैनेजमेंट की बातें तुम्हें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। तुम्हारा दिल चाहे तो तुम अपनी इलेक्ट्रिशियन की दुकान भले दोपहर के 2 बजे खोलना, 2-4 पंखे वगैरह ठीक करके वापस आ जाना। किसी नुकसान और फायदे के बारे में कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। गाड़ी स्टार्ट करते हुए सालार ने तफसील से कहा तो फाज ने बेहद नाराजगी से उसे देखा। ऐसा पहली बार नहीं था। ये डिग्री चूज करने पर उसे हर किसी से यही सब सुनने को मिलता था। जिनका मकसद उसे हर्ट करना नहीं होता था, वो महज उसे तंग करने के लिए कहते थे। उसका बैग और फाइल्स भी फ्रंट सीट पर पड़े थे, जिसका मतलब था कि आज भी क्लासेस अटेंड करने वाला था। एक पुरसुकून सी खुशी उससे अपने अंदर तक उतरती महसूस हुई थी। लेकिन फिर कल रात का सोचते हुए उसका मूड फिर बुरा होने लगा था। रात बहुत मसरूफ थे तुम। यूसुफ मुंतजर ही था कि कब उसकी जानिब से इसकी अदालत में पेशी लगेगी। ठीक है लहजे में उससे मुखातिब वो बैक मिरर में ही देख रही थी, जहां सिर्फ उसकी आंखों पर लगे गॉगल्स ही उसे दिख रहे थे। तुम एक बार भी अंदर नहीं आए थे। रात को काफी काम ज्यादा थे, उसने आहिस्तगी से जवाब दिया। एक बार तो आ ही सकते थे। वो शायद उससे नाराज हो चुकी थी, लेकिन इस बार भी हमेशा की तरह उसे खुद ही नाराज होकर खुद ही मान जाना था, क्योंकि यूसुफ से तो ऐसी किसी चीज की कभी उम्मीद नहीं रख सकती थी। और वो उसे क्या बताता, वो जानबूझकर उसे देखने से खुद को बाज रखता रहा था। रेशम की पेशकदमियों से जो ज़रबें उसके दिल में लग रही थीं, वो अभी भी किसी न किसी तरह से खुद को रोक लेता था, संभाल लेता था।
उस नादान लड़की की बातों में आकर वो अपने दिल का नुकसान नहीं करना चाहता था। अपनी हैसियत को वो पहचानता था। वो खुद को उसके कदमों के धूल की मानद भी नहीं समझता था, जो उससे अपने सर का ताज बना लेना चाहती थी। कहीं ना कहीं तो उसका दिल भी इसी आग में जल रहा था, लेकिन वो उसके अंजाम से खौफजदा था। खुद से ज्यादा उसे रेशम की फिक्र थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसकी इज्जत पर कोई हर्फ आए। तुम सुन भी रही हो मेरी बात? रेशम की तेज आवाज उसे सोचों के गर्दाब से खींच के वापस ले आई थी। जी, क्या कह रही थी आप? इतनी देर से तुमसे बात कर रही हूँ, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो। किन ख्यालों में खोए हुए हो? आज तुम्हें इजाज़त कैसे मिल गई यूनिवर्सिटी आने की? सालार सर से जिक्र किया था एग्जाम्स का, तो उन्होंने कहा कि 2 दिन के लिए चले जाना क्लासेस अटेंड करने। शाह ने उचकाते हुए उसने सादगी से कहा। रेशम ने खुद को कोई सख्त बात कहने से बाज ही रखा था। सादेन हवेली में उतरी सुबह ढलकर अब दोपहर की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। ऑफिस और यूनिवर्सिटी जाने वाले नाश्ता करके कब के निकल चुके थे। बाकी खवातीन भी अपने अपने कामों को अंजाम देती अब दोपहर के खाने की तैयारी में मसरूफ़ अमल थी। हवेली का अंदरूनी लाउंज काफ़ी कुशादा था, जो महंगे और फर्नीचर और कालीन से आरास्ता था। हवेली के मकीनों के अलावा अगर किसी बाहर के मर्द का वहां आना होता था, तो फिर उसके लिए एक अलग सा हिस्सा बैठक के तौर पर मखसूस कर रखा था। सादत गाजी का ज़्यादातर वक्त वहीं पे गुजरता था। उसका नक्शा कुछ इस तरह था कि हवेली के बड़े से दाखिली दरवाजे को खोलकर अंदर आया जाए तो सुर्ख ईंटों से बना पोर्च शुरू होता था, जिसकी दाईं और बाईं जानिब एक वसी लॉन फैला हुआ था। पोर्च के अख्ताम पर 2 स्टेप्स चढ़ने के बाद हवेली की अंदरूनी इमारत में दाखिले का दरवाज़ा था, जबकि बैठक दाईं तरफ बने लॉन के अख्ताम और एनेक्सी के साथ बनी हुई थी। सर्वेंट क्वार्टर्स उसके पीछे थे। कई रकबे पर फैली इस हवेली की शान और शौकत राजा महाराजाओं के दौर की याद ताज़ा करवाती थी। इस 4 मंजिला हवेली को सहारा देने के लिए बड़े बड़े से पिलर भी नस्ब किए गए थे। सादत गाजी को एक कीमती असासा अपने पुरखों की तरफ से विरसे में मिला था, जिसकी आराइश और जेबाइश पे वो कोई कसर नहीं उठा रखते थे। वादी में ये वाहिद इमारत थी जो इतने रकबे पर फैली थी। वहाँ के रिहायशी लोग इस हवेली और उसके मकीनों को एक शाही खानदान की हैसियत से ही तशबीह दिया करते थे। लाउंज के ऐन वस्त में एक बड़ा सा झूमर छत पर नस्ब था, जिसके नीचे बिछा दबीज कालीन सादत गाजी के किसी दोस्त ने उन्हें बाहर के मुल्क से मंगवाकर तोहफे में दिया था, जिस पर गोलाई में कीमती सोफे और मेज पड़े थे। शॉल को अपने गिर्द लपेटे दोनों पैर ऊपर की वो खामोशी से सोफे पर बैठी थी। कई बार अपनी सोचों को झटकने की कोशिश में नाकाम होने के बाद वो उसी ख्वाब के जेर असर थी। कई बार अपनी सोचों को झटकने की कोशिश में नाकाम होने के बाद वो उसी ख्वाब के जेर असर थी। बरीजे, तबीयत ठीक नहीं हुई अब तक? रायमा ने उसके पास बैठते हुए मोहब्बत से पूछा। सर में दर्द है पुप्पो। पेशानी मसलते हुए उसने रायमा के बाजू पर सर टिका दिया था। ना जाने किस बदबख्त की नज़र लग गई है मेरी बच्ची को, इतना हंसती मुस्कुराती रहती थी। उसका सर दबाते हुए वो तशवीश से कह रही थी, सिर्फ मैं आपकी सगी औलाद हूँ, लेकिन मेरे अलावा हर किसी से आपको मोहब्बत है। नाराजगी से कहता वो सिंगल सोफे पर विराजमान हुआ था। शायद अभी सोकर उठा था, इसलिए ट्राउज़र और शर्ट में मलबूस था। फ्रेश होने के बाद उसने बालों को पीछे की जानिब किया हुआ था, जिनमें पानी की बूंदें अभी भी चमक रही थीं। नाश्ता मिलेगा या नहीं? आज उसे अपनी माँ के हाथ का बना खाना ही खाना था। सब्र करो, बना देती हूँ अभी। आप मेरे पास से ना जाए ना। उनको उठता देख बरीजे ने उनका बाजू पकड़ लिया था। आप मेरा सर दबा दें पहले, दर्द से फट रहा है। उनके दबाने से उसे सुकून महसूस हो रहा था। जब भी उनके शाने पर सर रखे बैठी थी। अब इससे क्या हो गया है? ओ, समझ आया। जाहिर है दूसरों के सर में दर्द करवाने वालों के खुद भी तो होना चाहिए ना कभी। आशिर के तन से कहने पर रायमा ने तंबी नजरों से उसे देखा। फोपो, अपने बेटे से कहें खामोश हो जाए, मेरी तबीयत पहले ही ठीक नहीं। मानना पड़ेगा, बीमारी में भी जुबान बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रही है। फुप्पो, बरीज़े ने एहतजाजन फिर उन्हें मुखातिब किया। आशिर, अपने रूम में जाओ, मैं नाश्ता वहीं भिजवा दूंगी तुम्हारा। सॉरी मम्मा, मेरा तो आज यहीं बैठकर नाश्ता करने का मूड है। मजीद फैल कर बैठते हुए उसने पैर लंबे करके सामने पड़ी मेज़ पर कैंची सूरत रख दिए थे। दोनों हाथों को भी सर की पुष्ट पर ले जाकर तकिया सा बना लिया था। साथ ही रिमोट उठाकर वहां लगी इनलार्ज एलसीडी भी ऑन कर दी थी। जहां लगे म्यूजिक चैनल की आवाज़ उसने जानबूझकर काफ़ी तेज़ कर दी थी। आपका बेटा मेरे हाथों ही कत्ल होगा फुप्पो, शदीद नाराज़गी से रायमा को कहती वो उठ खड़ी हुई थी। जिंदगी जहन्नुम बनाकर रख दी है बदतमीज इंसान ने। कीनत और नजरों से उसे घूरते हुए वो वहां से वॉकआउट कर गई थी। जाते जाते सोफे पर पड़ा कुशन उठाकर उसके मुंह पर मारना नहीं बोली थी। आज वाकई उसकी तबीयत नासाज थी, जब भी वो पीछे हट गई थी, वरना तो बस उन दोनों में से किसी एक के शुरू करने की देर होती थी। फिर तो जो उनकी लड़ाई का आगाज होता था सभी उनसे तंग आ जाया करते थे।
आप कह रही थी कि इसकी तबीयत खराब है। आशिर ने वही क्वेश्चन उठाकर रायमा को दिखाते हुए जताया। तुम बाज नहीं आओगे? क्यों तंग करते हो मेरी बेटी को? हमना गाजी ने मसनूई खफगी से उसे कहा, जो अभी मुलाजमा के साथ उसका नाश्ता लाई थी। उनके इशारे पर वो मेज पर नाश्ता रखकर चली गई थी। ये सरासर इल्ज़ाम है मामी। आपकी बेटी भी कुछ कम नहीं है, बीमारी में भी इतनी बातें सुना कर गई है मुझे। तो तुम दरगुजर कर दिया करो छोटी बहन समझकर। अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो 7 जन्मों में भी कभी उसको अपनी बहन ना बनाऊं। उससे बेसाख्ता दोनों हाथों से कानों को छूकर नफी में सर हिलाया। आशिर, रायमा ने उसे खामोश करवाना चाहा, लेकिन वो एक बार शुरू हो जाए तो खामोश होना नहीं जानता था। और नहीं तो क्या मम्मी, अगर मेरी बहन इतनी बदतमीज़ होती तो फिर आप देखती कि मैं उसे कैसा सीधा करता। तुम्हें बहनों की कदर नहीं है, इसीलिए अल्लाह ताला ने तुम्हें बहन नहीं दी। और मैं तो कहती हूँ कि बहुत ही अच्छा हुआ, वरना तो तुमने उस बेचारी को जाने कितना टॉर्चर करना था। खुद के लिए कॉफ़ी बनाकर वो किचन से वापस आ चुकी थी। बस कर दो तुम दोनों, क्या बच्चों की तरह लड़े जा रहे हो? हमना गाजी उन्हें डांटे वहां से किचन की जाने बढ़ गई थी। बड़ी से, यहाँ आकर बैठो मेरे पास। देखो ज़रा, एक ही दिन में कैसे मुरझा गया ये चेहरा। लाल मिर्चों से नज़र उतारूंगी तुम्हारी। क्यों लाल मिर्चें ज़ाया कर रही हैं मम्मी? वो बेचारी रात के खाने में क्या चबाएगी फिर? और वैसे भी ऐसे चेहरों पर नज़र नहीं लगती। लोगों की नज़रें ख़राब थोड़ी हैं। हाँ, अगर जिन भूत की नज़र पड़ गई तो वो और बात है। नाश्ता करते हुए साथी लापरवाही से बोलता भी जा रहा था। वो लब भींचे आंखों में तेजी लिए उसे घूरती रही। आशिर, सादत गाजी की भारी और संजीदा सी आवाज़ पर वो हाथ में पकड़ा कप जल्दी से ट्रे में रखता उनके जाने मुतवज्जे हुआ था, जिनकी आमद का उन्हें पता ही नहीं चल सका था। बरीज़े और रायमा ने अपने अपने आंचल सर पर डाले थे। तुम आज भी यूनिवर्सिटी नहीं गए? बेदाग लिबास में मलबूस ब्राउन गरम शॉल को कंधे पर डाले वो उससे मुखातिब थे। आज वैसे ही छुट्टी कर ली। अच्छा किया, आज मेरे साथ ज़मीनों पर चलो। मैं? ज़मीनों पर? उसने हैरानगी से पूछा। क्यों, कोई मसला है? नहीं नाना जान, लेकिन मेरा मतलब क्या काम, मेरा क्या काम ज़मीनों पर? तजब्जुब से कहते हुए उसने साथी रायमा को भी मदद तलब नज़रों से देखा। आशिर, मैं तुम्हें ज़मीनों के हिसाब किताब के लिए नहीं लेकर जा रहा। बाइक लेकर सारा दिन आवारागर्दी करते रहोगे, इससे अच्छा है कि मेरे साथ चलकर ज़मीनें ही देख लो। संजीदगी से हुक्म सादिर करने के बाद वो जाते जाते रुके थे। नाश्ते से फारिग हो जाओ तो कुछ ढंग के कपड़े पहनना। सादत गाजी को इस तरह के कपड़े पहनना सख्त नापसंद था। जी बेहतर। उनके सामने वो कोई आर्ग्यू नहीं कर पाता था। उनके जाते ही उसने अधूरे नाश्ते की ट्रे आगे खिसका दी थी। मूड शदीद ऑफ हो चुका था। तैयार हो जाओ जाकर, बाबा तुम्हारे इंतजार में रुकेंगे नहीं। रायमा के कहने पर एक तेज नजर बरीजे पर डालता वो वहां से उठकर चला गया था, जो अभी भी उसकी इज्जत अफजाई पर हंस रही थी। यूनिवर्सिटी में तकरीबन सभी यूसुफ के बारे में जानते थे कि वो रेशाम का ड्राइवर है, लेकिन फिर भी उसके साथ ही मास्टर्स कर रहा है। जहां कुछ लोग तमस्कुर से यूसुफ को देखते थे, वहीं काफ़ी लोग उस पर रश करते हुए हवेली वालों के नरमदिली के कायल थे, जो एक मुलाजिम को भी अपने बच्चों की तरह ही अहमियत देते हुए उसे पढ़ा रहे थे। लोगों के इसी रवैये की वजह से शुरू शुरू में वो बहुत कम यूनी जाया करता था। बाद में फिर सालार के कामों की वजह से भी उसे वक्त नहीं मिल पाता था। वहाँ उसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। जो चंद एक थे उनसे भी बस सलाम दुआ की हद तक ही वास्ता था। रेशाम की नेचर भी उससे मुख्तलिफ न थी। यूनी में वो भी अपने काम से काम ही रखा करती थी। एक ही क्लास में होने के बावजूद भी जहाँ रेशाम फ्रंट सीट पर बैठना पसंद करती थी, वहीं यूसुफ सबसे आखिरी सीट चुनता था। क्लास में बेशक सारे तालिब इल्म एक बराबर थे, लेकिन वो उसके और अपने स्टेटस को जानता था। वो उसके पीछे ही रहना पसंद करता था। एग्जाम सर पर होने की वजह से यूसुफ पर पढ़ाई का काफ़ी बर्डन था। आज किस्मत से यूनिवर्सिटी आ गया था तो सारा वक्त अपनी पढ़ाई को देना चाहता था। लाइब्रेरी में किताबों के साथ सर खपाते हुए उसे जाने कितना वक्त बीत चुका था, उसे एहसास ही नहीं हो पाया। इस बार तो लग रहा है कि तुम ही टॉप करोगे। बड़ी सी लकड़ी की मेज़ की दूसरी जानिब ठीक उसके सामने बैठती वो उसी से मुखातिब थी, जिसने उसकी आवाज़ पर चौंक कर सर उठाया। कलाई में बंधी घड़ी को देखा तो एहसास हुआ कि आज उसने ज़रूरत से ज़्यादा ही टाइम दे दिया है इन किताबों को। एक ही पोजीशन में बैठे बैठे अब उसकी गर्दन भी दुखने लगी थी। पेन को मेज़ पर डाल के दोनों हाथों को गर्दन की पुष्ट पर रखे वो सर को हल्के हल्के दाएं बाएं हरकत देता खुद को पुरसुकून कर रहा था। ब्लैक हाई नेक पर ब्राउन जैकेट पहने अपने मासूम चेहरे को संजीदा तासुरात में ढाले वो उसकी नज़रों को भटकने पर मजबूर कर रहा था। ये लो, टिश्यू में लिपटा हुआ भाप उड़ाता कॉफ़ी का मग उसने यूसुफ के सामने खिसका दिया था। ठंड और थकन से बेहाल उसके वजूद को वो कॉफ़ी का मग एक नेमत ही लगा था। शुक्रिया, उसने मग थामते हुए कहा तो मुकाबिल की आंखों में खफगी उतार आई। तुम्हें इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो तुमसे 30,000 का जोड़ा लेने के बावजूद भी शुक्रिया नहीं कहा था। उसके नखुवत से कहने पर यूसुफ के चेहरे पर लम्हे भर को हैरानगी के तासुरात उभरे थे। यानी उसने जोड़े की कीमत मालूम कर ही ली थी।
मम्मा मुझसे पूछ रही थी कि तुमने यूसुफ के पैसों से वापस दिए या नहीं। मैंने तो उन्हें अभी तक इसकी कीमत भी नहीं बताई कि कहीं फिर से डांट ही न पड़ जाए। इतना महंगा जोड़ा लेने पर एतराज़ नहीं होगा। उन्हें तो बस ये बात पसंद नहीं आई कि मैंने तुमसे पैसे लेकर ड्रेस खरीदा। तुमने इतने पैसे खर्च दिए, बस तुम्हें कोई परेशानी ना हो। तुम्हें तो अपने घर भी भेजने होते हैं ना। कढ़ाई वाली काली चादर को सर तक ढांपे चिप्स के पैकेट से एक एक निकाल कर अपने मुंह में रखती अपनी हित में भूली जा रही थी। टांग पर टांग रखे, एक हाथ में कॉफी का गर्म मग पकड़े, दूसरे हाथ की मुट्ठी बनाकर लबों पर रखे, वो खामोशी से उसे देखते हुए सुन रहा था। जितनी हरारत उस गर्म कॉफी के मग से उसे मिल रही थी, उससे ज्यादा राहत उसकी बातों से यूसुफ के दिल को पहुंच रही थी। अगर उसे इसी तरह देखते हुए, उसकी बेसरोपा बातें सुनते हुए सारी जिंदगी गुजारनी पड़ती तो भी वो खुशी खुशी गुजार देता। लेकिन वो ड्रेस मैंने नहीं खरीदा था, तुमने अपनी मर्जी से खरीद कर दिया था मुझे। दोनों हाथ उठाकर उसे बावर करवाती वो सारी जिम्मेदारी उस पर डाल गई थी। मेरी नीयत गलत नहीं थी, ये बात आप भी जानती हैं। एक गर्म घूंट भरते हुए उसने लब को शाई की थी। मालूम है मुझे, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं थी, उसने नाराजगी से कहा। क्या था अगर वो पिछली बातों की तरह इस बार भी खामोश रह जाता? वो तो उसे अपने ख्यालों में भी खुश नहीं रहने देता था। देख लेना, एक दिन तुम्हें ये कहने पर मजबूर कर दूंगी मैं। माफ कीजिएगा रेशाम बीबी, लेकिन मेरी नीयत बदल गई है। हल्का सा उसकी जानिब झुककर वो सूख से बोली। वो अपनी बेसाख्ता मुस्कुराहट को छुपा नहीं पाया था। जिस दिन मैंने ये कहा तो आप भी समझ जाइएगा कि ये महज आपके वरगलाने की वजह से हुआ है। मेरे वरगलाने की वजह से? उसके लब हैरत से वाह हुए। कितने झूठे हो तुम यूसुफ। उसने तीखे अबरू से उसे देखा। कुशादा लाइब्रेरी की बड़ी बड़ी रैक्स में जमानों से सजी किताबें कान लगाए उसकी अगली बात की मुंतजर थी। इस भेद भरी खामोशी में यूसुफ को अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई देती महसूस हो रही थी। समाते उसकी आवाज़ सुनने को बेताब थी। तुम भले इकरार ना करो, लेकिन तुम्हारी आंखें सब बयान कर देती हैं, एक पुरसुकून और जताने वाली मुस्कुराहट के साथ कहती वो दोबारा सीधी हुई। नजरें झुकाए वो मेज की सतह को देखे जा रहा था। उसकी जुमाई ने बात की तरदीद और तस्दीक नहीं कर पाया था। वो कब की वहां से उठकर बाहर जा चुकी थी और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सका था। सब कुछ कहीं पसे मंजर में चला जाता था। खामोश से माहौल में धीमे सुरों में बजते मोहब्बत के साज वहां गूंजने लगे थे। कुछ देर पहले रेशम की आंखों में जलते दियों की रोशनी से जैसे सारा जहां मुनव्वर हो गया था। गहरी सांस भरकर उसने सिर को तासुब से हिलाया। वो जो अपने आप से बेकरार करने से हिचकिचाता था, दिल में उभरते उन जज्बों को नजरअंदाज करके अपने ख्यालों को झटकने की कोशिश करता था। जो बात वो खुद से भी छुपाता फिर रहा था, वो कितनी आसानी से उसके मुंह पर कह गई थी। उसकी ख्वाहिश करना कुछ गलत न था। वो थी ही ऐसी कि जिसकी ख्वाहिश में बंदा दुनिया से टकरा जाए। लेकिन वो नहीं चाहता था कि रेशम कभी उसके जज्बात से वाकिफ हो। ये तो तय था कि उन दोनों का जोड़ बेजोड़ था। उसे पाने की तमन्ना करना ऐसा था जैसे जमीन पर रहते हुए चांद को पाने की ख्वाहिश करना। उसकी मौजूदगी में वो उसे ना देखने की सही करता था। अपने आप को लाख समझाने बुझाने के बावजूद भी, नजरों को कंट्रोल रखने के बावजूद भी, इतना मुहतात रहने के बावजूद भी, वो फिर भी उसकी चोरी पकड़ने में कामयाब हो गई थी। तुफ है तुम पर यूसुफ। खुद पर मलामत करता वो अपना सामान वहां से समेटने लगा। इतना तो उसे अंदाजा था कि कहीं ना कहीं रेशम उसके जज्बात के बारे में आगाह है, लेकिन उसे कतई उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से उसका पर्दा चाक कर देगी। उसकी खैर थी, वो खुद को किसी तरह संभाल ही लेता। लेकिन उस पागल लड़की का क्या करता जो अपने साथ साथ उसकी जान की भी दुश्मन बन बैठी थी। अगर हवेली वालों के किसी फर्द को इस बात की भिनक भी पड़ जाती तो यूसुफ सोचना भी नहीं चाहता था कि उसका अंजाम क्या हो सकता था। काफी देर तक पढ़ने के बाद थकावट का एहसास हुआ तो किताबें बंद करके उसने साइड पर कर दी थी। लैपटॉप को भी चार्ज पर लगाने के बाद वार्डरोब से अपने लिए कोई इजी सा सूट निकालकर मुड़ी ही थी कि जब भी दरवाजे पर दस्तक देकर वो अंदर दाखिल हुई। ढीले जूड़े में बंधे बाल, हल्के नीले रंग के सादा सा लिबास पहने, हाथ में फोन और एक तकिया लिए हुए थी। खैरियत? रेशम ने नासमझी से उससे देखा। मैं आज तुम्हारे साथ सोऊंगी, वो कहती हुई बैठ के जाने आ गई थी। इजाजत नहीं मांगी थी, सिर्फ इतला दी थी। रेशम को याद आया था कि सुबह वो किसी ख्वाब की वजह से किस कदर डरी हुई थी। यकीनन काफी खौफनाक ख्वाब ही होगा, वरना बरीज़ इतनी आसानी से खौफजदा होने वाली लड़की नहीं थी। ठीक है, सो जाओ, शाह ने उसका कर कहते हुए अपनी चीजें समेट कर उसके लिए एक साइड खाली कर दी थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि वो दोनों रूम शेयर कर रही थी। बेड ग्राउंड से टेक लगाए ब्लैंकेट ओढ़े वो फोन पर मसरूफ हो चुकी थी, जबकि वो कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई थी। कुछ देर बाद गर्म पानी से शॉवर लेकर वो बाहर आकर ड्रायर से बाल सुखाने लगी। फिर चेयर पर पड़ी अपनी गर्म शॉल उठाकर अच्छे से ओढ़ी। यकीनन वो रूम से बाहर जाने वाली थी। मैं चाय बनाने जा रही हूँ, तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना दूँ? रेशम ने जाते जाते उससे भी पूछ लिया था, जिसने इस बात में सर हिलाया था।
घड़ी रात के 11:30 का वक्त बता रही थी। रे शाम को गए अभी 5-6 मिनट ही गुजरे थे। बालकनी का ग्लास डोर पूरा खुला हुआ था। पर्दे भी सारे एक तरफ हुए पड़े थे। रात में वहां का टेम्परेचर काफी गिर जाया करता था। यही वजह थी कि खुनक हवाओं से पूरा कमरा बर्फ की तरफ लगने लगा था। ना चाहते हुए भी ब्लैंकेट एक तरफ हटाकर वो बालकनी में आ गई। रेशाम का कमरा उस लोकेशन पर था कि वहां से ना सिर्फ पूरा लॉन और एनेक्सी दिखाई देती थी, बल्कि दूर देवकामत पहाड़ों का खूबसूरत सा दिलफरेब मंजर भी साफ दिखाई देता था। गहरे नीले आसमान पर सितारों का एक जहां आबाद था। बालकनी में रेशाम के पसंदीदा पौधों के अलावा एक लकड़ी का मुनक्कश झूला भी पड़ा था। ठंड के बावजूद भी वो इस माहौल से मेस्मराइज होती वहीं बैठ गई थी। धीमी आंच पर अपने लिए चाय का पानी चढ़ाने के बाद कैबिनेट में से बरीजे का फेवरेट मग निकालकर वो काउंटर के पास आई। मग में एक एक चम्मच कॉफी, चीनी और पानी डालकर फेंटते हुए वो पिछला दरवाजा खोलकर बाहर लॉन में निकल आई थी। फाज और सालार वॉक कर रहे थे। बाज दफा वो आशिक को भी ऑफर कर दिया करते थे, जो हमेशा ही इनकार कर दिया करता था। आजकल अबीर भी सारा के साथ उसके कजन्स की शादी अटेंड करने उसके मैके गया हुआ था, वरना कभी कभार उसका मूड होता था तो वो भी उन्हें ज्वाइन कर लिया करता था। हो गई पढ़ाई? सालार ने उसे मुखातिब करके पूछा, जो उनके पास ही आ गई थी। अभी कहाँ, अभी तो इतना सिलेबस पड़ा है। अबीर भाई की शादी की वजह से कुछ पढ़ ही नहीं पाई ठीक से। तुम्हारे हमेशा यही रोने होते हैं कि मैंने पढ़ाई नहीं की, कुछ पढ़ा नहीं गया, लेकिन फिर भी अच्छे नंबर्स लेकर पास हो जाती हो तुम। फाज ने बेजारी से कहा। तुम्हें क्या मालूम कितनी टफ पढ़ाई होती है मेरी? उसने नाक सुकेड़ कर कहा। इस बेचारे को देखो, सारा दिन इतना काम करने के बावजूद भी अपनी नींद कुर्बान किए पढ़ाई करा है। उसने कभी कंप्लेन की? हालांकि वो भी वही पढ़ रहा है। फाज ने दूर एनेक्सी की जलती हुई रोशनी की जानिब इशारा किया, जिसका मतलब था कि वो अभी तक जाग रहा था। रेशाम ने बस एक नज़र उसकी एनेक्सी को देखा था। पल भर में लबों पर मोयने खीसी मुस्कुराहट उभर कर मालूम हुई थी। अब वो उन दोनों को क्या बताती कि यूसुफ की नींद पढ़ाई की वजह से नहीं, बल्कि किसी और ही वजह से उड़ी हुई है। तुम्हें कब से कॉफ़ी पीने का शौक चढ़ गया? सालार ने अजनबी से उसके हाथ में मौजूद मग को देखा, जिसमें वो अभी भी कॉफ़ी फेंट रही थी। बरीजे के लिए बना रही हूँ। बरीजे के लिए? क्या मैंने ठीक सुना है? फाज ने कान खुजाते हुए सारार से इफ्तार किया। मुझे भी यही सुनाई दिया है। खैरियत? ये मुझे कैसे रोनमा हो गया? उसके तासुरात भी फाज से मुख्तलिफ नहीं थे। अपने लिए चाय बना रही थी तो सोचा उसके लिए भी कॉफ़ी बना दो। और ये बात जानकर तो आप दोनों और भी हैरतज़दा रह जाएंगे कि वो इस वक्त मेरे रूम में है और आज की रात मेरे साथ ही सोने वाली है। महफूज से अंदाज में कहती वो उन दोनों को हैरतों का झटका ही तो लगा गई थी। इस हवेली की दरों दीवारों ने रेशाम और बरीसे को कभी लड़ाई झगड़े करते नहीं देखा था। वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं थी, लेकिन दोस्त भी नहीं थी। उनके सोचो अंदाज मुख्तलिफ होने की वजह से उनकी कभी बनी ही नहीं थी। ज़रूरत के अलावा वो एक दूसरे से भी बात भी नहीं किया करती थी। शायद यही वजह थी जो रेशाम की बातें उन्हें हैरत ज़दा कर गई थी। तभी हवेली का बड़ा सा मेन गेट खोला। आगे पीछे 2 गाड़ियां वहां दाखिल होती दिखाई दी। पहली गाड़ी में से सादत गाजी अपने गार्ड्स के हमरा उसमें से उतरे थे और दूसरी गाड़ी की ड्राइविंग सीट से सर शलवार कमीज पहने वो शख्स उतरा था, जिसके चेहरे के तासुरात का अंदाज़ा उन्होंने दूर से ही लगा लिया था कि वो किस कदर बुरे मूड में है। महीने में एक बार सादत गाजी जब ज़मीनों की विजिट पर जाया करते थे तो लड़कों में से किसी एक को लाजमन अपने साथ ले जाते थे। उनमें से सिर्फ एक आशिर था जिसे उनके साथ जाना कभी पसंद न रहा था, क्योंकि उसे कोई शौक नहीं था गांव की धूल उड़ाती कच्ची सड़कों पर अपनी महंगी गाड़ी दौड़ाने और वहां के गरीब लोगों की मिजाज पुरसी करने का। वो तो उनके साथ जाने को ज़बरदस्ती की कैद खा करता था। सादत गाजी उन तीनों के सलाम का जवाब देकर जल्दी सोने की तंबीह करते अंदरूनी हिस्से की जाने पड़ गए थे, जबकि वो वहीं रुक गया था। लग रहा है आज तो सही वाली ख्वारी करवाई है दादा जान ने तुम्हारी, फाज ने उसे छेड़ते हुए कहा। मुझसे इस वक्त कोई सवाल मत करो, दिमाग फट रहा है मेरा। समझ नहीं आ रहा गांव के लोग वहां जिंदगी गुजारते कैसे हैं। कोई एक सहूलत ऐसी नहीं है जो उन्हें मैसर हो। आई विल नेवर गो बैक अगेन। वो शदीद तपा बैठा था। आज उसकी बाइक रेस थी। फजूल से गांव विजिट की वजह से वो वहां भी नहीं जा सका था। इस बार पर तो उसका गुस्सा आना जायज था। नाराज मत हो यार, रेशम कॉफी बना रही है, उससे पीकर एकदम फ्रेश हो जाओगे, फाज ने हल्के फुल्के लहजे में कहा। मौजूद के साथ, मैं पहले ही इन्फॉर्म कर चुकी हूँ कि ये बरीजे के लिए है। बरीजे के लिए कॉफी तुम बना रही हो, ऐसा कौन सा मुआवजा हो गया? उससे भी उन दोनों वाला ही सवाल किया था, उन्हीं के अंदाज में। खैर, वो पहले ही इतनी कड़वी कसीली बातें करती हैं, ऊपर से तुम उसे और ये तल्ख कॉफी दे रही हो। कोई मिल्क शेक बना दो, कोई शहद वहद दो उसे खाने को। आफिर को आशिर को कॉफी का इतना शौक नहीं था,
लेकिन अब उसे वही कॉफी चाहिए थी पीने के लिए। बरीज अगर उससे पंगा लेती थी तो वो भी कुछ कम नहीं था। उसे तपाने के लिए वो भी कोई मौका छोड़ता नहीं था। मेरी शदीद तरीन आरजू है कि काश काश बरीज अपनी तारीफ में कहे गए ये अल्फाज सुन लेती। दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए वो आसमान की जानिब देखकर शिद्दत जज्बात से बोला, क्यों, तुम्हारा इरादा यहाँ पर तीसरी जंग अजीम छिड़वाने का है? वो फास को घूरती दोबारा किचन की जाने पड़ गई थी। कॉफी वो फेंट चुकी थी, अब बस उसमें गर्म दूध डालना रह गया था। जब तक उसने कॉफी तैयार की तब तक चाय भी तैयार हो चुकी थी। बरीज़ तो अपनी कॉफी पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, और एक और कॉफी बनाने का मेरा मूड नहीं है। अगर तुम चाहो तो ये चाय ले सकते हो। उसने पीछे आते आशिर को ऑफर की। कॉफी फेंटना उसे एक अजाब ही लगा करता था। चाय का मूड नहीं मेरा, उसने कैबिनेट में से मग निकालते हुए जवाब दिया। फिर आधी कॉफी उस पर उंडेल कर मग दोबारा रेशम को थमा दिया। वो मुझसे लाजमी पूछेगी कि आधा मग कॉफी कहाँ गई, मैं तुम्हारा नाम लेने में 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगी। वो उसे डराने को बोली, जब तक उसे मालूम होगा मैं तब तक रूम लॉक करके सो भी चुका हूंगा। लापरवाही से कहते हुए वो किचन से निकल गया था। ठंडी हवाएं उसके चेहरे से टकराती ठिठर जाने पर मजबूर कर रही थी, जबकि वो बेदम सी आंखें बंद किए वहां बैठी थी। बालकनी का फर्श सफेद मार्बल से बना हुआ था, जहां देखते ही देखते अब सुर्ख फूलों की चादर से बिछती जा रही थी। वहां रखे बड़े बड़े गमलों में सजे फूलों की बेल तेजी से फैलती पूरी बालकनी को इतनी खूबसूरती से सजा गई थी कि देखने वाला वहां दंग रह जाए। वही खुशबू तेजी से वहां फैलती जा रही थी जिससे अब वो मानूस हो चुकी थी। धीमे से आंखें खोली तो सजी हुई बालकनी को देखकर एक झटका सा लगा। यूं लगता था जैसे वो किसी हसीन बाग में बैठी हो। लगता ही नहीं था कि ये कुछ देर पहले वाली बालकनी है। सरमस्ती से झूमते फूल और उन पर महवे रक्स तितलियां उस लड़की के हैरान परेशान चेहरे को देखती मुस्कुरा रही थी। तुम्हें क्या लगा था तुम्हारी जगह बदलने से मेरा दिल बदल जाएगा क्या? कहीं बहुत करीब वो धीमी मीठी सी आवाज उसके समातों से टकराई। सांस रोके, आंखें भींचे, वो बगैर हिस्सो हरकत वहां बैठी रही। अपने बराबर में किसी की मौजूदगी का एहसास उसके दिल की धड़कन कई गुना बढ़ा गया था। वो एक बार उसे देख चुकी थी, दोबारा देखने की उसमें हिम्मत नहीं थी। मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने तो नहीं आया बरीजे। उसका ढीला जूड़ा खुल चुका था, हवा से बाल लहराते उसके चेहरे को छू रहे थे। सख्ती से लब भींचे वो खुद को कुछ भी कहने से बाज रख रही थी। इतना तो उसे इल्म था कि उसके पहलू में मौजूद वो शख्स कोई इंसानी वजूद नहीं रखता था। बरीजे, बरीजे, उसने झटके से आंख खोली तो रेशम को खुद पर झुके पाया, जो परेशानी से उसे पुकार रही थी। क्या हुआ है तुम्हें? वो ग्लास में पानी निकाल रही थी, जबकि वो सीने पर हाथ रखे फूले तनफुस के साथ अपने इर्द गिर्द देख रही थी। वो इस वक्त बेड पर ही मौजूद थी। करीब ही उसका मोबाइल फोन खोला पड़ा था। शायद वो फोन इस्तेमाल करते करते ही नींद की वादी में उतर गई थी। इतनी सर्दी में भी उसे ठंडे पसीने आने लगे थे। क्या फिर कोई ख्वाब देखा है? रिशाम ने अपने दुपट्टे से उसकी पेशानी पर आया पसीना साफ करते हुए तशवीश से पूछा। नफी में सर हिलाते हुए उसने पानी का गिलास लबों से लगाया। फूफो को बुलाऊं, वो दम कर देंगी। वो सो चुकी होंगी, उन्हें परेशान मत करो। ठीक है, तुम लेट जाओ, मैं दम कर देती हूँ। वजू तो उसका था ही। सर पर दुपट्टा लेते हुए उसने दुरूद शरीफ पढ़ के कुरान की मखसूस सूरतें पढ़ना शुरू कर दी थी। साथ हाथों से वो उसका सर भी दबा रही थी, जिसके चेहरे पर अभी भी खौफ के असरात थे। फजर की अजानें दी जा चुकी थी। फिजाओं में हल्की हल्की सी धुंध थी। ग़िज़ा की तलाश में चरिंद परिंद अल्लाह की हम्दो सना करते अपने आशियानों से परवास कर चुके थे। नेवी ब्लू कुर्ते की आस्तीनों को फोल्ड किए वो जेर लब कुछ पड़ता घर के रास्ते पे गामजन था। उजाला भी पूरी तरह नहीं फैला था। वो दोनों भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। दोनों की आंखों में अभी भी नींद के डोरे थे। आज फरमान की तबीयत कुछ नासाज थी, इसलिए नमाज अदा करके वो घर चले गए थे। वरना इन चारों भाइयों का मामूल था फजर के बाद घर जाने के बजाय कुछ देर कॉलोनी में वॉक करने का। सरसब्ज और शादाब सी वो कॉलोनी एक पोश इलाके में वाकई थी। वो इलाका भी अभी एक पहाड़ी इलाके में ही मौजूद था। फरमान और दारियान को वॉक करना काफ़ी पसंद था, जबकि दाइम और मोहित को सख्त नापसंद होने के बावजूद भी उन्हें ज्वाइन करना पड़ता था। दारियान से तो वो फिर भी फ्रैंक थे, लेकिन फरमान के सामने कुछ नहीं कह पाते थे। आज यूनिवर्सिटी से हमारा ऑफ है, कम से कम आज तो सुकून से सो लेने दे भाईजान। दाइम ने उसके सामने हाथ नहीं जोड़े थे, लेकिन अंदाज मिन्नत भरा ही था। मेरा इरादा तो तुम दोनों को अच्छा सा नाश्ता करवाने का था। अभी तो ठीक से सुबह भी नहीं हुई है, इतना जल्दी नाश्ता मेरा मैदा कबूल नहीं करेगा। मर्जी है तुम दोनों की। उसने लापरवाही से शाने उचकाए। ब्राउन कलर का बड़ा सा लकड़ी का गेट दोनों अतराफ से सब्ज बेल से ढका हुआ था।
साइड में बनी क्यारियों में सजे खुशनुमा फूलों की खुशबू से सारी गली महक रही थी। इस गली में तकरीबन हर घर का दरवाजा ही इन सब्ज बेलों और फूलों से सजा हुआ था। वो तीनों अभी गेट के पास ही पहुंचे थे कि पीछे से एक ब्लैक मर्सिडीज आकर उनके बराबर वाले घर के पास रुकी। घर में दाखिल होने की बजाय वो वहीं ठहर गए थे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वो ड्राइविंग सीट से उतरते रजा साहब के पास चला है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो दारियान? उससे गले मिलते हुए उन्होंने खुशगवारी से पूछा। अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक, धीमे से मुस्कुराकर जवाब देते हुए उसने सोफिया के सामने सर को खम कर दिया था। जीते रहो, खुश रहो। प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने हमेशा की तरह उसे दुआओं से नवाजा था। दाइम और मोहित भी सोफिया और रजा साहब से मिलने के बाद पिछली सीट से उतरने वाली लड़की की जाने मुतवज्जे थे, जिसने जीन्स पर घुटनों तक आती कुर्ती पहन रखी थी। दुपट्टे के नाम पर एक स्टॉलर गर्दन के गिर्द लपेटा हुआ था। जदीद स्टाइल में कटे हुए उसके बाल पुष्ट पर लहरा रहे थे। ये थी उनकी बेटी माशा, माशा रजा। उनका घर दौरानी हाउस के बिल्कुल बराबर में वाक़ था। काफ़ी अरसे से वो दोनों फैमिली से इस इलाके में आबाद थी। एक दूसरे के घर आना जाना भी काफ़ी था। फरमान तो रजा साहब का बिल्कुल एक बाप की तरह ही एहतराम किया करते थे। सोफिया के एक छोटे से ऑपरेशन के बायस वो गुज़िश्ता दिनों से इस्लामाबाद गए हुए थे और आज पूरे 10 दिन बाद वहाँ से लौटे थे। तुम्हारी गैर मौजूदगी में इतनी कोई सख्त किस्म की बोरियत हुई है ना कि मैं बता ही नहीं सकता तुम्हें। बेशक रातों को उठ उठकर तुम्हारी जुदाई में गज़लें लिखता रहा है ये। मोहित की बात तो चक्कर वहीं दाइम ने लुकमा दिया। वाकई में? उसने खुशगवारियत से मोहित को देखा। तुम देखना चाहोगी? उससे भी उसी अंदाज में पूछा। क्यों नहीं, सबसे पहले मैं वो फरमान भाई की खिदमत में पेश करूंगी। असल खराज तहसीन तो वही पेश करेंगे तुम्हें। तंजीम मुस्कुराहट के साथ कहते हुए वो मोहित की खुशफहमियों को जमीन बोस कर गई थी। मुझे लगा 10 दिन की जुदाई में शायद इसको मेरी सच्ची मोहब्बत पर यकीन आ गया हो, लेकिन यह है कि देखती ही नहीं मेरी तरफ। बड़े भाई की मौजूदगी में ये तुम्हें देखेगी भी नहीं। दाइम ने आंख दबाकर उससे कहा तो उसने कीना तोड़ नजरों से दारियान को देखा, जो इन सबसे बेनियाज अंकल और आंटी से बातों में मसरूफ थी। फिर उसने माशा को देखा। वो भी इर्द गिर्द को खाते में न लाकर सिर्फ दारियान को बोलते हुए सुन रही थी, जैसे वो कोई खुफिया खजाने की जगह का पता बता रहा हो। उन पर से नजरें हटा लो, वो रिजर्व्ड हैं। मोहित ने रुखाई से उसे मुखातिब किया। क्या मतलब? माशा ने हैरानगी से उसे देखा। हमारी गैर मौजूदगी में इंगेजमेंट कर ली इन्होंने? दिल पर हाथ रखे वो दाइम से महवे सवाल थी। अंदाज ऐसा था कि अगर उसकी उम्मीद के बरखिलाफ जवाब मिला तो बस अभी सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तुम्हारी गैर मौजूदगी में कैसा हो सकता है? वो तो तुम्हारी आंखों के सामने पूरी शान से अपनी होने वाली दुल्हन को अंगूठी पहनाएंगे। दाइम, इसे कहो दफा हो जाए यहाँ से। पुरतपिश नजरों से मोहित को घूरते हुए वो दाइम से बोली। दिल ही दहला कर रख दिया था बदतमीज ने। आप लोग फ्रेश होकर हमारी तरफ आ जाएं। मैं भाभी को इतला कर देता हूँ, वो नाश्ते का इंतजाम कर लेंगी। तकल्लुफ में मत पड़ो बेटा। सोफिया ने शाइस्तगी से इनकार करना चाहा। तकल्लुफ कैसा आंटी? आप कोई गैर थोड़ी हैं। अगर फरमान वहाँ होता तो लाजमी वो भी यही करता। रजा साहब गाड़ी अंदर ले जा चुके थे, जबकि वो अभी भी वहाँ मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम। दारियान के पास आने पर सलामती भेजी। गालों पर सुर्खी और आंखों की चमक में 2 गुना इजाफा हुआ था। सर के इशारे से जवाब देते हुए वो उसके पास रुके बगैर घर के अंदर चला गया था। पीछे उसके चेहरे के रंग पल में बदले थे। देखना भी पसंद नहीं करता। सेकंड्स में उसका मूड खराब हुआ। मुझ पर तो कभी सलामती नहीं भेजी माशा रानी। मोहित ने सख्त नाराजगी से शिपका किया। तो दारियान भाई नहीं है ना, इसलिए तू? दाइम ने शरारत से कहा तो वो खराब मूड के साथ उन्हें नजरअंदाज करती अपने घर की जाने पड़ गई थी। सुबह का उजाला फैलते ही सादीन हवेली की रौनकें जाग उठी थी। बड़े से जदीद तर्ज पर बने किचन में इस वक्त तमाम खवातीन मौजूद नाश्ते की तैयारियों में मगन थी, जहाँ खिलाफ मामूल वो भी मौजूद थी। टेबल पर सर रखे खामोश और बेदम सी बैठी थी। सारा दिन फजूल से नॉवेल्स पढ़ती रहती हो, ना जाने कौन कौन सी मूवीज और ड्रामों में अपना वक्त ज़ाया करती हो, तो फिर तो ये सब होना ही है ना। अपने काम में मसरूफ हमना गाजी ऊंची आवाज में साथी उसे सख्त तो सुना रही थी। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है बरीजे, जब सारा दिन तुम इस तरह की चीजें देखोगी और पढ़ोगी तो फिर यही सब जहन पर सवार रहता है। उसके बराबर में बैठी रायमा ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए नरमी से कहा, तुम आगे एडमिशन क्यों नहीं ले लेती हो? कोई ज़रूरत नहीं है, जो एक पढ़ रही बस वही काफ़ी है। बच्चियों को पढ़ाई के चक्करों में डालने के बजाय बस उनकी रुख्सत की तैयारी करो। सफीना ताई ने रायमा फुप्पो की बात काटकर नखुवत से कहा। वो लड़कियों की बेजा आज़ादी के हक में नहीं थी फुप्पो, वो सिर्फ ख्वाब नहीं थे, मुझे लगा जैसे मैं हकीकत में उसे महसूस कर रही हूँ। उसकी आवाज़ महज इतनी थी कि रायमा ही बमुश्किल सुन सके। ध्यान मत दो इस बारे में, अपना जहन दूसरी चीज़ों में लगाने की कोशिश करो।
उसे टोकते हुए वो संजीदगी से बोली तो वो बेबसी से लब कुचल कर रह गई। कोई समझता ही नहीं था उसे। रजा साहब की फैमिली के वापस आने से लगता था जैसे दुरानी हाउस की रौनकें वापस लौट आई हों। और सच भी यही था। माशा ज्यादातर उन्हीं के घर में पाई जाती थी। ईशा और फरमान हो या मुहिद और दाइम, सब सही उसकी खूब जमती थी। अभी भी वो ईशा के साथ नाश्ता बनाने में मगन थी, लेकिन हाथों से ज्यादा जुबान चल रही थी। पूरे 10 दिनों का अहवाल था जो वो तफसील से उसे सुना रही थी। नाश्ता बनाने पर ध्यान दो, बातों से हमारा पेट नहीं भरने वाला, मोहित ने चिढ़कर कहा। वो कब से किचन काउंटर पर चढ़कर बैठा सेब खाकर भूख की शिद्दत को कम करने की कोशिश कर रहा था। सोफिया और रजा साहब तो फरमान और दारियान के साथ ड्राइंग रूम में मौजूद थे। दाइम उनकी बातों से बोर होने लगा तो वो भी उठकर किचन में आ गया था। माशा रानी, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। दारियान भाई नाश्ते में ये सब नहीं खाते। वो ऑमलेट का अमेज़ा फ्राई पैन में डाल रही थी जब दाइम ने तासुब से कहते हुए उसकी मालूमात में इजाफा किया। तो क्या खाते हैं? उससे इतनी बेसाख्तगी से पूछा था कि उन दोनों के कहके छूटे थे। ईशा को भी हंसते देखा तो झीम गई। मैं वैसे ही पूछ रही थी। खजारत मिटाने को उसने सारी तवज्जो ऑमलेट की जानिब मरकूज कर दी। तुमसे अच्छी देवरानी हमारी भाभी को टॉर्च लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। लेकिन मसला यह है कि दारियान भाई कमिटेड हैं, लेकिन मैं शदीद सिंगल हूँ। लगे हाथों उसने अपना प्रपोजल भी दे डाला, लेकिन उसने सिर्फ पहली बात ही सुनी थी। कमिटेड हैं? उसकी आंखों में कुछ उलझन और नागवारी के रंग साफ देखे जा सकते थे। कुछ देर पहले बाहर भी तो वो यही कह रहा था। इनकी बातों पर ध्यान मत दो। ईशा का अंदाज दिलासा देने वाला था। मैं तो कहता हूँ तुम भाभी की बातों पर मत आओ। ये तो चाहती नहीं है कि तुम इस घर में आओ, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल सच बता रहा हूँ। दारियान भाई पसंद करते हैं किसी को। वो ड्रामाई अंदाज में कहता उसे हौलाए जा रहा था, जबकि ईशा हंसते हुए चाय कैटल में निकाल रही थी। भाभी क्या ये सच है? वो रोहासी हो गई। मैं बता रही हूं ना, वो नहीं पसंद करता किसी को। इनकी मत सुनो तुम। इनसे क्या पूछ रही हो? हमसे पूछो, असल गवाह तो हम हैं। वो उसे यकीन दिला ही देता अगर किचन के दरवाजे से वो भारी आवाज न उभरती। नाश्ता तैयार हो गया भाभी? माशा समेत वो दोनों भी गड़बड़ा उठे थे। अभी लगा रही हूं बस। उनके जवाब देने पर वो सर हिलाता पलट गया तो मुहिद और दाइम ने अपनी रुकी हुई सांस बहाल की। इन्होंने सुना तो नहीं? माशा ने डरे हुए अंदाज में पूछा। तुम्हारे उन्होंने सुन लिया होता तो इस वक्त नाश्ते में मेरे और मोहित का कीमा तैयार हो रहा होता। दाइम ने हाथ झुलाकर कहा। ये मुझे दे दो दारियान, ये मुझे दे दो। दारियान भाई नहीं खाते तो क्या हुआ, मैं तो बहुत शौक से खाता हूँ। उससे भाप उड़ाता ऑमलेट प्लेट में निकाला तो मोहित ने उसके हाथ से उचक लिया। पहले बता देते मैं इतनी मेहनत ना करती। वैसे माशा, दारियान भाई तो अपनी लड़की पसंद कर चुके हैं। अगर तुम चाहो तो हम मोहित का रिश्ता भेज सकते हैं तुम्हारे लिए। दाइम ने शरारत भरी संजीदगी से कहा तो वो शदीद गुस्से की घून भर कर रह गई। बेला इरादा ही निगाह मोहित की जानिब उड़ गई, जिसकी बाँछें कानों तक फैली हुई थी। माशा के देखने पर उसने दोनों अबरू को उचकाते हुए कहा, क्या ख्याल है फिर? माशा का बस न चला कि उसकी गर्दन पकड़कर मरोड़ दे। मर जाऊंगी लेकिन तुम दोनों में से किसी से शादी नहीं करूंगी। मुझे क्यों लपेट रही हो? यकीन मानो मेरे लिए तुम बहनों जैसी ही हो। हाँ, लेकिन इस खबीस के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। दोनों हाथ उठाए वो अपनी साफ नीयत के बारे में उसे आगाह कर रहा था। और कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे भाई के अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, तुमसे भी नहीं। उंगली उठाकर वो सख्ती से मोहित को वार्निंग दे रही थी। देखो माशा रानी, दारियान भाई से तुम्हारी शादी हरगिज नहीं होनी, इसकी तो मैं 100% गारंटी देता हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ उनके नाम पर बैठी रह जाऊंगी। बाद में ये ना हो कि मैं भी हाथ से निकल जाऊं। तुम तो मेरी जिंदगी से निकल जाओ, जान छोड़ो मेरी। दोनों हाथ उसके सामने जोड़े हुए बेजारी से बोली। दाइम बेसाख्ता कहका लगाकर हंस पड़ा था। लड़की, तुम पछताओगी एक दिन। वो जज्बाती ब्लैकमेलिंग पर उतर आया तो वो उन दोनों को नजरअंदाज करती किचन से ही बाहर निकल गई थी। दुपट्टे से सर ढके चाय की ट्रे हाथों में उठा उसने दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ। कुछ फाइलों के साथ मसरूफ जमीर गाजी ने उसे अंदर आने की इजाज़त दी थी। मैं आपके लिए चाय लेकर आई थी। बहुत शुक्रिया बेटा। कब पकड़ते उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया। अपनी इकलौती और लाडली बेटी में उनकी जान बसती थी। कुछ कहना था आपसे। फाइल्स पर सरसरी सी निगाह डालते उसने हिचकिचाते हुए बात का आगाज किया। कहो। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा। आप जानते हैं कि मुझे क्या कहना है। ऑफिस आने की इजाज़त तुम्हें हरगिज नहीं मिलेगी। उसके अलावा कुछ कहना है तो बताओ। बाबा, रेशम ने नाराजगी सुने देखा। मुझे मालूम है इसकी इजाज़त आप दे भी देंगे तो दादा जान राजी नहीं होंगे, लेकिन मुझे कुछ और कहना है। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम इस चीज़ को समझती हो।
अब बताओ क्या कहना है। ड्राइविंग सीखने की इजाज़त तो आप दे ही सकते हैं मुझे। ड्राइविंग? ये शौक कब से लग गया तुम्हें? बस मुझे सीखना है। घर में ड्राइवर मौजूद हैं, यूसुफ भी है और बाकी के मर्द भी हैं। तुम्हें खुद से कहीं आने जाने की ज़रूरत ही क्या है? तो आप इजाज़त नहीं देंगे? बिल्कुल। मैं नहीं चाहता कि कोई मासूम इंसान तुम्हारी गाड़ी की जद में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठे। बाबा, मैं बहुत ध्यान से ड्राइविंग करूंगी, किसी को हर्ट नहीं करूंगी, ट्रस्ट में। इस मामले में तो मैं बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकता तुम पे। आप मेरी जिम्मेदारी पर इसे इजाज़त दे दें ज़मीर चाचू। दरवाजे पर से उभरी इस आवाज़ पर उन दोनों ने उसकी जानिब देखा, जो टू पीस में मलबूस कोट बाजू पर डाले दीवार से बाजू टिकाए खड़ा था। ये बहुत भारी जिम्मेदारी है सालार भाई। अगर मेरी गाड़ी के नीचे कोई आ भी गया तो मेरे बजाय आप थाने जाएंगे। उसने आगे के हालात से बाखबर किया। मैं ऐसी नौबत ही नहीं आने दूंगा। और अगर जाना पड़ गया तो? उसने अबरू उठाकर पूछा। चला जाऊंगा, मुझे कोई मसला नहीं। शाह ने उचकाकर उसने बेनियाजी से जवाब दिया। फिलहाल तो तुम जामे जाने की तैयारी करो। एग्जाम्स कब से शुरू हैं तुम्हारे? जमीर गाजी ने उससे इस्तफसार किया। इसी मन से है। चलो ठीक है, आज मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। खैरियत बाबा? उसने चौंक कर पूछा। ये जिम्मेदारी तो यूसुफ की थी ना? हाँ, यूसुफ को बाबा जान ने ज़मीनों पर भेजा है, वो रात तक ही वापस आएगा। तो मुझे कौन लेने आएगा फिर? मैं आ जाऊंगा, फिक्र नहीं करो। सालार ने कहा तो वो इनकार कर गई। नहीं, रहने दें सालार भाई, मैं आज ऑफ ही कर लेती हूँ। वैसे भी इतनी कोई पढ़ाई नहीं हो रही। इसका इरादा पल में बदला था, वरना तो वो बिल्कुल तैयार थी जाने के लिए। लाइट पिंक कलर की थीम से सजा उसका कमरा एक बारबी डॉल का छोटा सा घर ही लगा करता था। वहाँ की हर चीज़ आला मयार की थी। कालीन और पर्दों से लेकर महंगे और कीमती फर्नीचर तक हर शय उसकी पसंद की थी। स्टाइलिश सी कैप्री शर्ट पहने, दुपट्टे एक शाने पर डाले, वो फ़ोन उठाए उस पर कोई नंबर डायल कर रही थी। स्याह दराज जुल्फों को समेट कर एक कंधे पर किया हुआ था। तीसरी बेल पर कोई फ़ोन रिसीव कर गया था। अस्सलाम वालेकुम। उसकी भारी आवाज़ स्पीकर में से उभरी। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ पर हो तुम? उसके अंदाज में तहक्कुम सा था, जो मुकाबिल को बुरा नहीं लगा था। ज़मीनों पर, बड़े साहब के काम से आया था। उसने सादगी से जवाब दिया। ओ, मुझे लगा तुम डर गए। मैं क्यों डरूंगा? क्या सच तुम्हें मालूम नहीं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? जुल्फों की लट उंगली पर लपेटे वो सिंगल सोफे पर बैठी थी। आप तफसील बता दें तो मेहरबानी होगी। रहने दो यूसुफ, मैं तफसील में जाऊंगी तो फिर तुम नजरें चुराकर और सर झुकाकर बैठ जाओगे। मैं तो इंतज़ार में थी कि शायद तुम आज इकरार कर ही लोगे, लेकिन तुम तो ज़मीनों पर फरार हो गए। अंदाज में हल्की सी खफगी की झलक लहराई थी। मैंने राह फरार इख्तियार नहीं की। और रही बात इकरार की, तो आप मेरे इकरार की नहीं बल्कि इस हवेली की तबाही के मुंतज़िर हैं। तुम्हारे इकरार का हवेली की तबाही से क्या ताल्लुक़? शफाफ पेशानी पर उलझन ज़दा से बल पड़े थे। तो क्या आप इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि हवेली वाली बखुशी आपकी शादी करके आपको मेरे साथ एक छोटे से गांव में रुखसत कर देंगे? मुझे गांव जाना भी कबूल है। वो फौरन से बोल उठी, लेकिन मुकाबिल ने जवाब देने में कुछ सातों का वक्त लिया था। लेकिन मुझे नहीं कबूल कि आप मेरे गांव में आए। तुम तो बहुत ही बदतमीज़ हो। भला ऐसे मुंह पर कोई इनकार करता है? रेशाम को सख्त बुरा लगा था उसका इतना साफ इनकार। आज तक किसी ने उसे ना नहीं कहा था। ये यूसुफ तो जाने किस मट्टी का बना था। मैं सिर्फ आपको ये बावर करवाना चाहता हूँ कि अपनी हैसियत और रुतबे को मत भूलें। आपने हमेशा शहजादियों जैसी ज़िंदगी गुजारी है। एक आम से मुलाजिम के पीछे अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करें। क्या मैंने तुमसे मशवरा मांगा है? उसने दुरुस्तगी से बात काटी। मैं आपका खैर ख्वाह हूँ। सेकंड के तवक्कुफ के बाद उसकी आवाज़ उभरी थी, जिसमें नरमी थी, मिन्नत थी, आजिज़ी थी। इसकी जगह तुम कुछ और भी कह सकते थे। मसलन, जानते बूझते इतना मासूम बनने की कोशिश मत किया करो। कब वापस आओगे तुम? वो यूसुफ को मुलाजमिन नहीं समझती थी, फिर भी वो चाहती थी कि यूसुफ के सारे हक सिर्फ उसके पास हो। रात तक वापसी होगी। और कुछ कहना है आपने, या मैं अपना काम कर लूँ? कर लो अपना काम। मेरे अलावा तो हर काम और हर चीज़ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रखती है। बुड़बुड़ाते हुए कहती वो कॉल काट गई थी। बेड पर ढेर सारे कपड़े फैलाए वो वार्डरोब सेट करने में मगन थी। बरीजे, एक कप चाय बना दोगी मेरी बहन? जब फाज ने उसके रूम में झांकते हुए मिन्नत से कहा। मैं मसरूफ़ हूँ, किसी मुलाजिम से बनवा लो। उसने बगैर किसी लिहाज के कहा। मुलाजमों के हाथ में तुम्हारा जैसा टेस्ट नहीं है, प्लीज़ बना दो। इतना मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसे आंखें दिखाते हुए वो ना चाहते हुए भी राजी हो गई थी। सब डिनर कर चुके थे। किचन समेट कर सफाई करने के बाद मुलाजिम भी अपने क्वार्टर में जा चुके थे। वो अपने ही ध्यान में किचन में दाखिल हुई तो वहाँ पहले से मौजूद खड़े आशिर को देखकर वो चौंक उठी। कॉफ़ी बना रहा था अपने लिए। तुम पियोगी? आशिर,
اور وہ بھی اتنے دوستانہ انداز میں اس سے مخاطب تھا. وہ تو کبھی اسے زہر کی بھی پیشکش نہ کرے. کہاں کافی بنانے کی بات کر رہا تھا. نو تھینکس. رکھائی سے کہتی وہ چائے بنانے لگی. وہ کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی. جو بنا تو کافی رہا تھا لیکن سارا دھیان اس کا بریزے کی طرف تھا. اس کی گہری نظروں سے وہ پہلو بدل رہی تھی. عاشر کے اس انداز کی وہ کبھی عادی نہیں رہی تھی. تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کافی بنانے کے بعد اس نے وہیں کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر پینا شروع کر دی تو وہ جھنجھلا کر بولی. کیوں؟ میرے یہاں کھڑے ہونے سے تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں ہے مسئلہ مجھے. پھر وہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میں تو یہیں کھڑا رہوں گا. اس کی نظروں سے الجھن زدہ ہوتی ہوئی اس نے چولہا بند کر دیا تھا. جیسے تیسی بنی چائے کپ میں نکال کر وہ اس سے گھورتی ہوئی کچن سے نکل کر فاس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی جو پیچھے وہیں کھڑا مسکرا رہا تھا. سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آنے کے بعد پہلا کمرہ اسی کا تھا. دروازہ دھکیل کر وہ اندر داخل ہوئی. یہ لو تمہاری چائے. اسے تقریباً کپ کو پٹکنے کے سے انداز میں سائڈ ٹیبل پر رکھا. کیا ہو گیا ہے؟ کیوں انگارے چبا رہی ہو؟ لیپ ٹاپ پر مصروف فاز نے ہیڈ فونس اتارتے ہوئے حیرت سے اسے دیکھا. اپنے اس دوست کو سمجھا لو. تم فضول میں میرے منہ نہ لگا کرے. کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ عاشر کی بات کر رہی ہوں. اور کس کی کروں گی؟ اب کیا کر دیا اس نے؟ اس نے حیرانگی اور ناسمجھی سے پوچھا. میں چائے بنا رہی تھی کچن میں تو فضول میں ہی بحث کرنے لگا میرے ساتھ. یہ کب کی بات ہے؟ ابھی کی ہی بات ہے جب میں چائے بنا رہی تھی. کیا ہو گیا ہے بریزے؟ فاز نے کچھ کہنا شروع ہی کیا تھا کہ جب ہی باتھ روم کا دروازہ کھلا. تولیے سے بالوں کو رگڑتا وہ باہر نکلا. میں یہی کہنے لگا تھا. یہ تو پچھلے 20 منٹ سے شاور لے رہا ہے. اس سے تمہارا سامنا کچن میں کیسے ہو گیا؟ بریزے کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں. شدید شوق کے عالم میں وہ یک تک عاشر کو دیکھے جا رہی تھی. اس نے کھلی آنکھوں سے خواب نہیں دیکھا تھا. اس کی آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھیں. وہ ہو بہو وہی تھا. اگر عاشر یہاں تھا تو پھر کچن میں وہ کس سے ہم کلام تھے؟ اسے کیا ہو گیا ہے؟ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس عاشر نے خود پر پرفیوم کا اسپرے کرتے ہوئے فاز سے استفسار کیا. شکایت کر رہی تھی کہ ابھی کچن میں تم اس سے بحث کر رہے تھے؟ میں کچن میں؟ اس نے انگلی کو سینے پر رکھ کر استفسار کیا. اور نہیں تو کیا. آج کل کن خیالوں میں کھوئی رہتی ہو بریزے؟ فاز نے تعصب سے اسے دیکھا جو پتھر کا بت بنی کھڑی تھی. اس نے مجھے اتنا سر پر سوار کر رکھا ہے کہ ہر جگہ صرف میں ہی اسے دکھائی دیتا ہوں. تب مسکرانہ انداز میں کہتے ہوئے وہ پلٹ کر بالوں میں برش کرنے لگا تھا. میں جھوٹ نہیں بول رہی فاز. کپ کپاتے لبوں سے کہتے ہوئے ایک آنسو اس کی پلکوں کی باڑ توڑ کر نکلا تھا. وہ وہاں سے بھاگتی ہوئی نکلی تھی. خیالوں سے نکل کر اب وہ کسی اور کے روپ میں اس کے سامنے آ رہا تھا. کون تھا وہ جو اس کے پیچھے پڑ چکا تھا؟ اسے اپنے سائز سے بھی ڈر لگنے لگا تھا. ڈر و خوف کی ایک لہر اس کے سراپے میں دوڑ رہی تھی. وہ شکل ہو بہو عاشر کی تھی لیکن اس کی گہری آنکھیں اور وہ بدلا بدلا سا لہجہ اس کا نہیں تھا. نوٹس بناتی ریشام نے ایک نظر اسے دیکھا جو کمبل میں دبکی ہوئی تھی. بریزے ہو سکتا ہے تمہیں وہم ہوا ہو. مجھے کوئی وہم نہیں ہوا. میں نے حقیقت میں اسے دیکھا تھا. وہ مجھ سے بات بھی کر رہا تھا. کوئی چلتے پھرتے کیسے کوئی خواب دیکھ سکتا ہے بھلا؟ کمبل ایک طرف ہٹا کر وہ اٹھ بیٹھی تھی. بکھرے بال اور سرخ متورم آنکھوں سے اس سے محو سوال تھے جسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کن الفاظ میں اسے تسلی دے کر اس کا خوف دور کرے. لان میں واک کرنے چلیں؟ موڈ نہیں میرا. نفی میں سر ہلا کر کہتی وہ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی. کافی رات بیت چکی تھی جب مین گیٹ کے کھلنے کی آواز ہے. اس کی سماعتیں تو کب سے اس آواز کے منتظر تھیں. لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتے ہوئے وہ جلدی سے اٹھی. سلیپرز پہنے بغیر ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی بالکنی میں پہنچی. بلیک لینڈ کروزر کھلے گیٹ سے اندر داخل ہو رہی تھی. ڈرائیونگ سیٹ سے اترنے والے شخص نے کسی نظروں کی تپش کو خود پر محسوس کیا تو نظریں اٹھا کر اس کی بالکنی کی جانب دیکھا جو دونوں بازو ریلنگ پر ٹکائے تھوڑا سا جھکی ہوئی کھڑی اس کی جانب متوجہ تھی. اتنی دور سے بھی وہ اس کے سرخ و سفید چہرے کی چمک اور آنکھوں میں جلتی خیرہ کن روشنیوں کو محسوس کر سکتا تھا. اس کے سنہرے روپ سے نگاہ چوراتا نفی میں سر ہلاتا وہ بیٹھک کی جانب بڑھ گیا تھا جہاں سعادت غازی موجود تھے. کون آیا ہے؟ گلاس ڈور بند کر کے وہ پردے ٹھیک کر رہی تھی جب بریزے کی آواز پر اس کے ہاتھ تھمے. یوسف. لہجے کو سرسری سا بناتے ہوئے اس نے جواب دیا. تم اسے دیکھنے گئی تھی؟ اس کی آواز میں تعجب تھا. میں اسے کیوں دیکھنے جاؤں گی؟ مجھے لگا سالار بھائی ہوں گے. کچھ ٹاپک سمجھنے تھے مجھے ان سے. سالار بھائی تو کب سے حویلی میں موجود ہیں. اچھا مجھے نہیں معلوم تھا. تم پہلے بتا دیتی. میں تو کب سے ان کے انتظار میں تھی. آواز کی لرزش پر قابو پاتی وہ خود کو مصروف ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی جب بھی اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا ایک کاغذ اٹھا کر اس کی جانب بڑھا دیا. یہ کیا ہے؟ ریشام نے اس سے کاغذ لیتے ہوئے بولا. تائی امی کے انکار کرنے کے باوجود بھی پھپھو نے یہ ایڈمیشن فارم منگوا دیا یوسف سے. مجھے آگے نہیں پڑھنا ریشام.
उसका अंदाज बेबसी लिए हुए था। ये तो आशिर की यूनिवर्सिटी है ना? एडमिशन फॉर्म देखने के बाद उसने इस्तफसार किया तो उसने इस बात में सर हिला दिया। बरीजे ने बीएससी इंजीनियरिंग में ही कर रखा था। आशिर की भी यही फील्ड थी। ये तो अच्छी बात है। आशिर तुम्हारी स्टडीज में हेल्प भी कर देगा और तुम्हें अच्छी कंपनी भी मिल जाएगी। कंपनी? और वो भी आशिर की? उसकी कंपनी में रहने से बेहतर है बंदा बोर ही होता रहे। वो नखुवत से बोली। मेरा इरादा नहीं उसकी यूनिवर्सिटी में उसके साथ पढ़ाई करने का। अटल लहजे में कहती वो तकिया ठीक करते हुए दराज हो गई। वैसे मेरा मशवरा तो यही है कि तुम आगे एडमिशन ले लो। और तुम कौन सा उसकी क्लास में साथ पढ़ोगी? वो तो सीनियर है तुमसे। और सबसे अच्छी बात, वो तो हफ्ते 15 दिन में एक बार ही यूनी जाता है। तुम दोनों का ज्यादा आमना सामना भी नहीं होगा। उसने चुटकी बजाते हल पेश किया। सोचूंगी, गैर दिलचस्पी से कहती हुई वो नींद में जा रही थी।